Hello everyone, welcome to our exam B which prepare 50% faster and embrace the learning experience with us. So Akansha Agarwal, your reasoning mentor, is working on with you and running with you in the puzzle marathon going on daily at 9 p.m. non-stop at iExamB. So this is an exclusive puzzle marathon which is going daily at 9 p.m. in which you will find new pattern puzzle. Plus, if you are preparing for your regulatory bodies like RBI, SEBI, NABARD, plus if you are working on your mains of IBPS, SBI, then this marathon is really helpful for you. So I hope you will find interesting puzzles over here that would help you in working in your examination. So this is the day 4 of the puzzle going on. Day 1, day 2 and day 3 has already been done. So if you have not watched the video yet, you can go and watch them, and it is also provided in the description box. So today we'll work on the month based puzzle plus how we need to work on it. So let's take a structure. So whenever a month place come puzzle come, we need to think about a part imagination of calendar. So it would be definitely the month's name. Whenever the month's name come, we must be knowing कि इसके numbers क्या है, जनवरी में कितने दिन है, फरवरी में कितने दिन है, like और डेट्स दे रखी है. तो कैलेंडर स्ट्रक्चर आपके माइंड में घूमना चाहिए एंड उस तरीके से ही हमें यहाँ वर्क करना है. So directly we'll come on the question. You can take the screenshot of this question, and after watching my complete video, you can solve this question on your own so that you will feel more confident after doing the question yourself. So let's get back to this question. So there are 10% namely JK, okay, 10% is given. They go for seminars on 12th and 25th of different months, okay, and मंथ्स दैट इज जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई. सो आप यहाँ पे देखिए 10 लोग हैं, दो डेट्स हैं और 5 मंथ्स दे रखे हैं, यानी 2/5, राइट. सो वेन एवर वी वर्किंग ऑफ 2/5, सो 2/5 मीन्स 10. सो यहाँ पे 10 की मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें हम बात करें. सो दो रोज और यहाँ पे दो कॉलम. सो यहाँ पे हम दो रोज और दो कॉलम की बात करेंगे जिसमें 12 एंड 25 वुड बी द डेट्स एंड 5 वुड बी द कॉलम. सो कभी भी इस तरीके का अगर कुछ आपका आता है स्ट्रक्चर, दो डेट्स है और 5 डिफरेंट मंथ्स है, तो आप ये पैटर्न यूज करिए. ये काफी इजी हो जाता है क्योंकि इसमें रिपीटेशन का भी नहीं होता. उसके बाद जो डेटा दे रखा है आइए उसे चेक करते हैं. So what is the data first line giving to you? P goes on a seminar in the month which has odd number. So पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. So 12 and 25 are the two dates. और यहाँ पे हमें मंथ्स दे रखे हैं. सबसे पहले है जनवरी. फेब्रवरी नहीं है यहाँ पे, और जब भी फेब्रवरी होगा वहाँ लिखा होगा वेदर इट्स लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, और कुछ भी डेटा उससे रिलेटेड वहाँ ज़रूर दे रखा होगा क्योंकि 28 डेज भी होते हैं, 29 भी. So January में 31, March is again 31, April is 30, June again is 30 and July is 30. ये आप पहले ही लिख लिया करिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. और यहाँ पे ये इवन है और ये ऑड है. अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं. कई बार लिखने से हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर है, हमें पता बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमसे गलती से भी गलती होने की उम्मीद कम हो जाती है हमारी. सो दिस इज़ द पॉइंट कि हम जिस पजल पे टाइम स्पेंड करें वो ऑफकोर्स 100% एक्यूरेट हो और एग्ज़ाम में हम उसे 100% कर सकें, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होती है तो हमारे पूरे पेपर को हैम्पर करती है. So P goes on a seminar which is odd number of days. So P के पास odd number of days है. Okay. Next is, but it's not in January. So P is not in January. See, P couldn't come here and here. So next is 4% are between P and Q. P and Q के बीच में यहाँ पे 4% है. मैं नीचे लिख देती हूँ. P and Q के बीच में 4% है. Next is and didn't go on a seminar on an even date. That means यहाँ पे even date में नहीं जा रहा है, तो n of course will go an odd date. और odd date हमारे पास एक ही है और वो date है 25. So odd date, और you can directly write 25. Next is given P goes seminar before Q. So यहाँ से clear हो गया बिल्कुल. P पहले है किसके? Q के. So यहाँ पे ये पहले ही आएगा. सो ये वाली जो लाइन है इसे हम कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बिटवीन था P पहले आ सकता है Q, ये क्लियर हो गया. R goes in a seminar which is odd number of days. R एक odd number of days वाले सेमिनार पे जा रहा है. M goes for a seminar on even days of the month. M even days of the month में जा रहे हैं. Okay, even date of the month.
एंड विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज आफ्टर एन। सो यहाँ पे आप देखिए कि इवन डेट ऑफ द मंथ एंड विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज आफ्टर एन। सो इवन नंबर ऑफ डेज भी होने चाहिए आफ्टर एन के बाद। सो यहाँ पे हम इसको अभी अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जे गोज आउट सेमिनार जस्ट बिफोर एन। सो जे जस्ट बिफोर एन के जहाँ पे जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ तो मे बी कि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट जब होगी चीज़ों को लिखने की तो हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे जे पहले जा रहे हैं एन से। ओके, पी और क्यू हो गया हमारा आर और, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे हम वर्क करते हैं। ओनली 2 पर्सन गोज सेमिनार बिटवीन आर एन एस के बीच में केवल 2 लोग हैं। ओके, नेक्स्ट इज ओ गो सेमिनार जस्ट आफ्टर एल। सो ओ जो है वो जस्ट आफ्टर एल है, जस्ट लिखा है तो ब्लॉक कर दीजिए, बट नॉट इन अप्रैल एंड जनवरी। एंड ओ जो है ना ही अप्रैल में है और ना ही यहाँ पे जनवरी में। सो कौन बन भी, तो ओ के लिए हमारे पास ये डेटा है। नेक्स्ट इज ओनली 3 पर्सन गोज बिटवीन के एंड ओ। सो ओ और के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ पे बाय डायरेक्शनल एरो कर देते हैं। नेक्स्ट इज एन एंड गोज फॉर अ सेमिनार ऑन द सेम डेट बट डिफरेंट मंथ। और एन और ओ हमारा सेम डेट पे है। सो आप एक वर्टिकल ब्लॉक बनाएंगे बट डिफरेंट मंथ में है, डिफरेंट मंथ आप लिखना चाहे लिख लें। दिस इज द कंप्लीट डेटा जो हमें मिला है। अब हाउ टू स्टार्ट विद इट। सो सबसे ज़्यादा गैपिंग मुझे पी की ही नज़र आ रही है, मैं यहाँ ब्लैक कलर यूज़ कर लेती हूँ। पी की नज़र आ रही हो, और पी के लिए हमें एक पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है कि पी और क्यू में 3 की गैपिंग, और पी जनवरी में नहीं है और पी ऑड है। सो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे पी के लिए। सो पी को स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे पी को यहाँ पे प्लेस करें, सो 1 2 3, यहाँ पे काउंटिंग ऐसे नहीं होगी, पूरे ब्लॉक्स काउंट होंगे 1 2 3, और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। सॉरी 4 का गैपिंग है। 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास 4 सेमिनार्स है, राइट। सो 4 सेमिनार्स, 1 2 3 4 क्यू वुड बी हियर। अब सेकेंडली ये भी हो सकता है ये 25 ऑफ मार्च को जा रहा हो। सो यहाँ पे एक और केस बना लेते हैं। सो यहाँ पे 12 25 केसेस बनाने में बिल्कुल आप लोग लेजी ना हो। जब भी ऐसा हो फटाफट इसको बनाइए, जितना सोचेंगे आप उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो सेम डेटा कॉपी कर लिया हमने। सो पी यहाँ पे और 1 2 3 4 ओ यहाँ पे। ओके, अब ओ के नीचे ओ, ठीक है, राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कहीं आ सकता है ये। अब हमारे पास ऑड है तो ऑड में 2 ही पी की पोजीशन पॉसिबल है। सो यहाँ सॉरी क्यू। सो यहाँ पे हमारे पास यही पॉसिबल है। सो पी और क्यू के लिए, क्योंकि पी ऑड पे ही आना है, पी के साथ गैप है 3 का। सो अब आप 30 में रख नहीं सकते अप्रैल में। सो पी और क्यू प्लेस हो गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर कि पी और क्यू के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कोई डायरेक्ट डेटा नहीं है, बट हमें अब किससे कनेक्ट करना पॉइंट को। दिस इज द मेन पॉइंट एंड ऑफन वी गेट कंफ्यूज ओवर हियर। जी एन एन दे रखा है, एल ओ दे रखा है, ओ के दे रखे हैं, और एन ओ डिफरेंट डेट पे है। सो कहीं ना कहीं हमें इन सबको रिलेट करना हो, जिसमें हमें सबसे ज्यादा गैपिंग ओ और के में दे रखी है। और ओ के लिए हमें एक पॉइंट दे रखा था, ओ कैन नॉट बी इन जनवरी एंड अप्रैल। सो ऐसा करते हैं जुलाई से ही स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ओ को लास्ट केस में प्लेस करूँ तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो अगर मैं यहाँ पे ओ को प्लेस करूँ, या फिर अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं 12 जुलाई को प्लेस करूंगी तो एल यहाँ नहीं आ सकता, ऑलरेडी क्यू है। सो यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते। नेक्स्ट इज अगर मैं यहाँ पे ओ को प्लेस करूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ओ को प्लेस करूँ तो एल यहाँ पे होगा। ओके, और ओ से 3 का गैप पे 1 2 3 के यहाँ नहीं हो सकता। सो ओ यहाँ भी प्लेस नहीं हो सकता। सो इस केस में हमें समझ में आ गया। और ओ अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो एल नहीं आ सकता। सो ओ के लिए एक ही प्लेस बची यहाँ पे, ओ या तो यहाँ पे होगा या यहाँ। सो ओ अगर मैंने यहाँ पे प्लेस करा है सो एल यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एल जस्ट अबव है, इसके ब्लॉक करा था हमने। और ओ से के में डिफरेंस कितना है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया के, राइट। नेक्स्ट इज आप यहाँ पे देखिए, अब ओ के आगे सो एन, एन भी हमारा एन किसी और डेट पे ही है। सो और डेट मतलब एन इसी कॉलम में ही होगा यहाँ पे, और डिफरेंट मंथ में तो एन या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, और एन से पहले है जे। तो अगर मैं एन को यहाँ प्लेस करूंगी तो जे यहाँ पॉसिबल नहीं है। सो एन डेफिनेटली यहाँ होगा और जे यहाँ पे होगा। और आप अगर आप देखें तो मेरे पास 1 2 3 3 ब्लॉक्स रह गए हैं। हो सकता है हमारा यहीं से केवल काम चल जाए। सो आर एक और डेट पे है। ओके, सो यहाँ इवन है, इवन है तो आर यहीं पे होगा डेफिनेटली।
नेक्स्ट आप देखिए आर और एस में 2 का गैप है, सो 1 टू एस यहाँ पे आ गया हमारा, और एम एक इवन डेट पे है, एम यहाँ आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट केस ही बहुत इजीली यहाँ पे हमारा बन गया, सो हमारा फर्स्ट ही आंसर हो गया। बट हम ये जरूर चेक करेंगे कि हमारा सेकंड केस में पॉसिबिलिटी है या नहीं। सो अगर मैं ओ एल को प्लेस करना चाहूँ तो यहाँ पे ओ नहीं आ सकता क्योंकि एल की जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ओ को रखूँ और यहाँ पे एल आएगा, सो ओ और के में जगह 1 2 3, के कुडंट बी देयर, सो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओ मैं यहाँ पे प्लेस करूँ तो यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 1 2 3 के यहाँ पे आपका आ जाएगा और एल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ओ है अगर, तो ओ के साथ ही एन इवन डेट पे आना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई ओ को तो हम 12th वाली रो में रख ही नहीं सकते, इसलिए केस डिस्कार्ड हो जाता है, and this is the correct answer. So I hope you all got the way how to be solving this question of month and date base. So do solve this question after completing the whole video on your own. So all the best for your preparation further. Thank you, and do join the puzzle marathon daily at 9 p.m. with Akansha Agarwal.